सेकेंड फॉर्मूला किस चीज का पूछ रहे हो आप? यू आर आस्किंग व्हाट वाज द सेकेंड फॉर्मूला, बट देन व्हाट सेकेंड फॉर्मूला? व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट? ए डैश और पी डैश? ड्यू में ए डैश और पी डैश है। ओके, सो इन द second exercise, second chapter, exercise 2.2, we have completed 1 to 6 problems, 1 2 3 4 5 6, and if I'm not wrong, 11th and 12th, right? 1 2 3 4 5 6, 11th and 12th, is this correct? P is always greater than A. P कैसा A से greater रहेगा? Accumulated value is always greater than, future value is always greater than the present value. Okay, now I think we should go to question number 13, 1 3 of the exercise 2.2. The present value of an annuity due of rupees 600 to be paid quarterly at 32% per annum, compounded quarterly for 1 year. Present value find out करने का, annuity due. So the problem category is of annuity due. Is this clear? Problem category is of annuity due. बराबर है? It is mentioned in the problem. अभी annuity due of 600. So what is rupees 600? C, correct, very good. C is equal to 600. To be paid quarterly, मतलब 600 का पेमेंट हर एक क्वार्टर में होने वाला है at 32% per annum compounded quarterly. I is equal to 32% divided by 4. Okay, quarterly payment है तो division by 4. And 1 year into 4. So 4 installments. Four installments. Okay, N is equal to 4 installments. What are we supposed to find out? P. P is incorrect. P नहीं find out करना है. P dash. Read the question carefully. Find the present value. ऐसा बोला है, मतलब present value find out करना है. किस चीज का? Annuity due का. उसमें annuity due कितना है? 600 है. Find a present value मतलब present value दिया है क्या? Someone is telling me P is equal to 600. ऐसे लिखो आप. Present value दिया है क्या? Find the present value का मतलब है we are supposed to find out the present value. Is P equal to 600? अरे what is given in the question? Find the present value is given in the question. तो present value find out करना है. That's it. But then annuity due है, इसके लिए P dash आया, P नहीं आया.
P dash C 1 plus I upon I, right? 1 plus I raised to minus n. C 1 plus I upon I, 1 minus 1 plus I raised to minus n. ठीक है? Now we'll put the values. If you have copied this, then we'll put the values. C कितना है? जल्दी कॉपी करो प्लीज. Okay. Should I put the values now? Enough amount of time was given to copy. देखो. जिसको आगे सॉल्व करने का है कर लो. Don't worry. Others you can wait for me. 600 1 plus 8% upon 8%, बराबर ना? 1 minus 1 plus 8% raised to 4 minus 4. Is this clear? 600 into 100 upon 8, 108 upon 100, बराबर है क्या है? Is this correct whatever I have written? हंड्रेड और 100 कैंसिल हो जाता है. 600 into 108 upon 8, 1 minus 0.7350. टू का डिवीजन करो, 2 से रिड्यूस करो, 2 फोर और ये 54 हो जाएगा. ये 300 हो जाएगा. ओके, एंड दिस विल बी 150. 1 माइनस 0.7350 कितना होता है? 0.62650 बराबर.
चलो कैलकुलेट करो फाइनल आंसर। 150 इंटू 54 इंटू 2650 अपॉन 10,000। समीक्षा, योर आंसर इज रॉन्ग। कितना है, किसी ने कैलकुलेट किया? 2146.50। अमय, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। सर इट शुड बी 0.2640। नहीं ना, 2650 ही रहेगा ना, क्योंकि 10 - 5 तो 5 देगा ना। 40 कैसे रहेगा? कृतिका, जस्ट चेक दिस। बहुत सारे जन कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं, तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। 150 इंटू 54 2650 अपॉन 10,000 बराबर है क्या? जीरो 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 कौन? अब ये मल्टीप्लीकेशन तो बराबर से करो। 15 इंटू 54 इंटू 265। 15 इंटू 54 इंटू 265 बराबर से मल्टीप्लाई करो। आर यू गेटिंग दिस? 15 इंटू 54 इंटू 265 इज इक्वल टू 214650। आर यू गेटिंग दैट? तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी रुपीज 2146.5। एंड में कितना, 5 के बाद में कितना भी जीरो डाल दो, इट डज नॉट मैटर। 5 लिखो या 50 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। 15 इंटू 54 कैसा आया है, सब कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, देखो। 150 इंटू, सॉरी, 150 इंटू 54। 150 इंटू 54 कैसे आया है, सब मैंने कैलकुलेशन में दिखाया है। सी। इंटू 2650। ये सम का फर्स्ट स्लाइड। हैव यू ज्वाइन लेट? ठीक है, प्रॉब्लम इज ओवर। आई शो द स्लाइड्स। फर्स्ट स्लाइड देखो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। सेकेंड स्लाइड।
Third slide. Should I start with the next problem? Okay. Question number 14. An annuity immediate is to be paid for some years. Annuity immediate is to be paid for some years at 12% per annum. I is equal to 12% per annum. अच्छा, प्रॉब्लम का कैटेगरी लिख देते हैं. Always mention for our reference the problem is of the category annuity immediate. बराबर है. Present value of the annuity is rupees 10,000. What is equal to rupees 10,000? What is equal to rupees 10,000? P. Accumulated value is 20,000. A. Find the amount of each annuity payment. मतलब क्या? Amount of each annuity payment. इसका मतलब क्या है? C. Annuity का मतलब C. Amount of C. Okay. अभी annuity immediate का फॉर्मूला देखो. There are 4 formula given to you. बराबर है. तो A, P और C तीनों एक ही फॉर्मूला में कभी आता है? Fourth formula. So 1 upon P minus 1 upon A is equal to I upon C. Just copy this. If you have copied this, then I will proceed with the next slide. So 1 upon 10,000 minus 1 upon 20,000, 12% upon C. बराबर है. Have I written correctly? LCM लेते हैं. Into 2 into 2. बराबर है क्या? Should I take the LCM instead of cross multiplication? LCM is a better option. 2 minus 1 upon 20,000, 12 upon 100 C. परसेंटेज का 100 नीचे आया. 1 upon 20,000, 12 upon 100 C.
Simple problem. C is equal to 2400. All calculations are there in front of you. Is this problem difficult? If you have done copying this, then we'll start with the next problem. Should I? Go to question number 9 and 10. Question number 9. Find the rate of interest compounded annually. We are supposed to find out rate of interest. Okay. If an annuity immediate at 20,000. Annuity immediate का problem है. So what is 20,000? C. Annuity immediate at 20,000. तो annuity क्या हो गया 20,000. ठीक है. It amounts to 2,60,000 in 3 years. मतलब 3 साल के लिए तुम लोग 20,000 20,000 10 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो. It is giving you a return of 2,60,000 in 3 years. So what is 2,60,000? Anyone? A. प्रेजेंट वैल्यू कैसा रहेगा? 3 साल के बाद का वैल्यू है ना, फ्यूचर वैल्यू है. लेकिन ये ए रहेगा कि ए डैश रहेगा? इट विल बी ए. N is equal to 3 installments. A is equal to C by I. 1 plus I raised to N minus 1. Okay. One second. A is given to us. Please copy till here first.
Should I proceed? Hello, should I proceed? Okay, so see how I'm solving this. A plus b the whole cube. A cube 3a square b 3ab square plus b cube -1। -1 किधर से आया? ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी -1 था। ओके, तो -1 को भूलना नहीं, डोंट लीव इट आउट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 13i, राइट हैंड साइड 1 प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब -1। 1 और 1 कैंसिल हो जाता है। राइट हैंड साइड में कॉमन क्या लूं? व्हाट शुड आई टेक कॉमन ऑन द राइट हैंड साइड नाउ? 3 टर्म्स बचा है, क्या कॉमन लूं? i कॉमन लूंगा। 3i कैसे कॉमन निकलेगा? यहाँ पे थोड़ी 3i है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो कॉमन कैसे निकलेगा उसमें? 3 i i 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है। सो कैन आई कैंसल i एंड i? ए i स्क्वायर इक्वल टू -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर थोड़ी है। ये तो रेट है। दिस आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। i स्क्वायर को -1 मत लो प्लीज। 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर। तो i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? समझा क्या? ओके, i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इक्वल टू 0। i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 इक्वल टू 0। बराबर किया मैंने फैक्टराइजेशन। हैव आई परफॉर्म करेक्टली? +5 -2। चलो कॉपी करो। अभी ये पेज पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इट इज प्योर अलजेब्रा जो आपने पहले भी किया है।
Should I proceed? If you have copied this, then should I proceed? Okay. I plus 5 minus 2 I plus 5 equal to 0. I minus 2 I plus 5 equal to 0. I equal to 2 or I equal to minus 5. This case is discarded. Okay. Rate cannot be negative. Therefore I is equal to 2. एक लास्ट स्टेप पेंडिंग है, बट I इज इक्वल टू व्हाट? I का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बोला था शायद से, ये I इज इक्वल टू रेट अपॉन 100. So 2 is equal to rate upon 100. Rate is equal to 200%. समझा क्या? I is rate upon 100. Please. देखो फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है, आई हैव गिवन यू सो मेनी फॉर्मूले, इमीडिएट एंड ड्यू. वहां फॉर्मूला के अंदर 100 ऑलरेडी था क्या, कि हम लोग अलग से डालते थे नेक्स्ट स्टेप में? माय क्वेश्चन, मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं वहां पे. अभी यही फॉर्मूला देखो, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला में 100 था क्या? इसमें हम लोग 100 लिखते हैं क्या? नहीं लिखते. लेकिन प्रीवियस चैप्टर याद करो. जस्ट रिकलेक्ट द प्रीवियस चैप्टर. वहां पे 100 था क्या? SDNR अपॉन 100, TD प्लस TDNR अपॉन 100. तो वहां पे हम लोग 100 पहले ही लिखते थे, लेकिन ये चैप्टर में 100 हम लोग और पहले लिखते नहीं है. इसके लिए आई लिखते हैं, आई. एंड व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100. रेट कैन बी एनी परसेंटेज, 100%, 200%, 1000%, इतना भी रह सकते. लुक एट द लास्ट स्लाइड. देखो, सो रेट ऑफ रिटर्न इज 200%. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? Yes, it is. But then in case of stocks, in case of shares, right? And it was also possible in case of cryptocurrencies. वो सब अभी जाने दो. मैं बोलने के लिए सिर्फ बोला. ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर टाइम भी चला जाएगा और आधा जन को समझेगा भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके. कभी फ्री होगे तो क्रिप्टो एक्सप्लेन करो.
क्रिप्टो बाबा अभी तक मुझे भी पूरा समझा नहीं है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिलहाल। मैथमेटिक्स पार्ट मेरे को पता है, लेकिन उसके पीछे का वर्किंग इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ years for which an annuity of 500 is paid at the end of every year. Find the number of years. फर्स्ट लाइन पढ़ो सिर्फ। They are asking an annuity of 500. What is annuity of 500? C. Very good. Now this annuity of 500 is paid at the end of every year. 500 रुपया हर एक साल के एंड में इन्वेस्ट हो रहा है। विच कैटेगरी दिस इज? इज इट इमीडिएट और ड्यू? At the end of the time period. So it is annuity immediate. It is annuity immediate. It, if the accumulated amount works out to be 1655. What is 1655? If the accumulated amount works out to be 1655. A is equal to rupees 1655. Correct. I कितना है? 10%. Okay. A is equal to C by I. 1 plus I raised to n minus 1. 1655 is equal to 500 upon I. I is 10%. 1 plus 10% raised to n minus 1. कॉपी करो इतना पहले। Should I proceed? One six five five 500 upon 10 upon 100, 1 plus 10 upon 100 raised to n minus 1. ठीक है, चाहे तो ये 0 0 कैंसिल कर दूं। 1655 इज इक्वल टू 5000। समझा क्या 5000 कैसे आया? जीरो ऊपर गया, ये 10 का जीरो ऊपर गया, एंड दिस इज 1.1। ओके, सो 1655 अपॉन 5000
1.1 रेज टू n माइनस 1. ओके, 5 से डिविजिबल है दोनों. देखो बराबर से. 331/1000. 5 से डिवाइड किया मैंने. प्लस 1. 1.1 रेज टू n. So this is 1331/1000. 1.1 रेज टू n. कॉपी करो. Okay, so this is equal to 1.1 raised to n is equal to 1.331. 1.1 raised to n is equal to 1.331. Okay, now we are going to solve this using trial and error. अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालते तो राइट हैंड साइड आएगा क्या? Will we get the right hand side? Yes. 1.1 raised to 1 is it equal to right hand side? ये तो 1.1 हो गया. Is it equal to 1331? No. So can n be equal to 1? Can n be equal to 1? No. फिर 1.1 raised to 2 डाल के देखो. ये नीचे का कॉपी नहीं करने का. What is 1.1 raised to 2? Is it equal to 1.21? Is it equal to 1.21? Yes, it is equal to 1.21 कैलकुलेट करने के बाद में. लेकिन अपने को आंसर क्या चाहिए? 1.331. So is n equal to 2? No. n equal to 3 डाल के देखो. n equal to 3 डाल के देखो. What is 1.1 raised to 3? Now 1.1 raised to 3. 1.1 into 1.1 into 1.1. 1.331. 1.331. ठीक है. Therefore n is equal to 3 installments. n is equal to 3 installments. बराबर है. राइट. बोलो. मैंने आपको n इंस्टॉलमेंट्स बोला है ना. फॉर्मूला में n इंस्टॉलमेंट्स रहता है. सो n इज इक्वल टू 3 इंस्टॉलमेंट्स. मुझे एक बात बोलो, ये प्रॉब्लम हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है कि ईयरली है? द प्रॉब्लम इज ऑफ हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली और मंथली. ईयरली है ना. तो 3 इंस्टॉलमेंट्स बोलो या 3 ईयर बोलो, इज इट वन एंड द सेम फॉर दिस प्रॉब्लम? यस. सो
नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 3। समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? ठीक है, go to miscellaneous exercise, question number 4. Miscellaneous exercise, question number 4. इसका 14th प्रॉब्लम हिंट देता हूँ. As in they have missed writing one value over here. 1.03 raised to 20 इक्वल टू 1.8061. ये वैल्यू दिया नहीं उन लोगों ने, देना चाहिए था. ये सेल्फ स्टडी का प्रॉब्लम है 14 एंड 15. 14, 15, 17, these are self study problems. So I assume that this is over. Okay, but then we'll discuss it. एक बार डिस्कशन कर लेते इसका. 14 प्रॉब्लम कौन सा टाइप का एन्युटी है? 14 प्रॉब्लम विच टाइप ऑफ एन्युटी? ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब इमीडिएट. 500 क्या है? एवरीबॉडी शुड रिस्पॉन्ड. द नॉन रिस्पॉन्डिंग पीपल, जो लोग कभी रिस्पॉन्ड करते नहीं है, वो लोग भी ट्राई करो रिस्पॉन्ड करने के लिए. 500 is C. It is paid at the end of every quarter. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है. तो ईयर्स को, 5 ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई करने का? 4 से. और रेट को किससे डिवाइड करने का? रेट को डिवाइड करने का 4 से. चार्ट आपको दिया है. सो 14 प्रॉब्लम इज ओवर. दे हैव नॉट गिवन दिस वैल्यू. इतना बड़ा वैल्यू वी कैन नॉट कीप ऑन कैलकुलेटिंग. वी कैन नॉट कीप ऑन कैलकुलेटिंग. ठीक है. 15th प्रॉब्लम. फाइंड द अमाउंट अ कंपनी शुड सेट असाइड. अच्छा, 15th प्रॉब्लम फिलहाल के लिए जस्ट वेट. 15th प्रॉब्लम जस्ट वेट. डोंट टेक इट इन योर होमवर्क लिस्ट या सेल्फ स्टडी का लिस्ट में मत लो. उसका अंडरस्टैंडिंग अभी भी पेंडिंग है. 17th प्रॉब्लम, आई गिव यू द हिंट. 17th प्रॉब्लम अब भी जो मैंने सॉल्व किया उसकी तरह ही है. एग्जाम में वैल्यू देना ही पड़ेगा उनको. लेकिन अगर 1.03 रेज टू 3 रहेगा और उसका वैल्यू दिया नहीं है 1.03 रेज टू 3, कैन यू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन? 1.03 रेज टू 3. यस, मतलब 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03. ठीक है. नेगेटिव अगर वैल्यू रहेगा पावर में, नेगेटिव वैल्यू रहेगा अगर पावर में, तो वो लोग हमेशा देंगे. ओके. 17 सम का हिंट. 1 प्लस आई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर. ये हिंट है, ये दिया नहीं रहेगा. हिंट विल नेवर बी गिवन इन द प्रॉब्लम. तो 17 प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब भी जस्ट हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया, वहां पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर है. ओके. यस और नो?
और एंड में क्या करोगे, आई इज इक्वल टू 17 प्रॉब्लम में एंड में क्या करोगे, आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100, करेक्ट, आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100. ठीक है, so mark this problem, 14 and 17 are done. फिफ्टींथ प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला है अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट अस गो टू 22nd प्रॉब्लम. ये क्लियर है क्या? 14 का वैल्यू नहीं दिया था, 17 में मैंने तुम लोग को हिंट दी है. 22nd एंड 23rd प्रॉब्लम, ये भी सेल्फ स्टडी है. ओके, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years. 22nd प्रॉब्लम, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years फाइंड आउट करना है, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ द अमाउंट ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, मतलब 12,000 का इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर हो रहा है. 12,000 क्या है इसमें, 22nd प्रॉब्लम में 12,000 क्या है? सी, अमाउंट इन्वेस्टेड इज द एन्युइटी, हाउ इट इज पी. हर एक हाफ ईयर के एंड में 12,000 इन्वेस्ट हो रहा है, हर 6 मंथ्स में 12,000 इन्वेस्ट हो रहा है, so that is the installment. C is equal to rupees 12,000. Okay, 2 years को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. 2 years को 2 से मल्टीप्लाई करने के विल गेट 4 इंस्टॉलमेंट्स. एंड रेट को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है. ओके, द प्रॉब्लम इज हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, बाई एनुअली, इसके लिए ऐसा हो रहा है, राइट. In this problem value is not given, but then I am expecting you people to calculate on your own value. उसका भी तुम लोग को आदत रहना चाहिए. ओके, ठीक है. 23rd प्रॉब्लम यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इतना कुछ मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है 23rd प्रॉब्लम में, राइट. ओके, गो बैक टू द एक्सरसाइज 2.2. गो बैक टू द एक्सरसाइज 2.2. क्या चाहिए आपको? सर यू कैन डिस्कस, आई डोंट वांट टू डिस्कस. यस निखिल, आई वोंट डिस्कस, यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कस करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा. ओके, whatever classwork, homework, exercise, miscellaneous problem I solve in class or I discuss in class, that will be a part of your test. Go to the exercise now. ये 4 सम खुद के लिए कर लेना प्रैक्टिस के लिए. Okay, so exercise 2.2 question number 7. exercise 2.2 question number 7. अभी तुम लोग का डिवीजन कितना अच्छा है वो तुम लोग को पता चलेगा. Question number 7. A lady plans to save for her daughter's marriage. She wants to accumulate a sum of 4,64,100 at the end of 4 years. मतलब ईयर 1 2 3 4, 4th ईयर के एंड में उसको कितना जमा करने के, कितना जमा करने के.
for the said purpose. Have you understood? इतना समझा? फोर्थ ईयर के एंड में, मतलब फ्यूचर में. सो व्हाट इज 464,100? फ्यूचर वैल्यू. पी कैसा रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसा रहेगा? फ्यूचर वैल्यू. ए, फ्यूचर में उसको जमा करने के लिए. ठीक है. हाउ शुड, हाउ व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर? अभी ईयर के स्टार्ट में कि ईयर के एंड में, ये तो बोला नहीं है. सो दिस इज एन्युटी इमीडिएट. हर एक साल के स्टार्टिंग में कि हर एक साल के एंडिंग में कितना सेव करना है तो बोला नहीं है. सो बाय डिफॉल्ट इट इज एन्युटी इमीडिएट. लेकिन इसका मतलब क्या है? व्हाट अमाउंट शी शुड इन्वेस्ट एवरी ईयर. हर एक साल में उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? सी, वेरी गुड. एन्युटी दे आर आस्किंग. हर साल का इंस्टॉलमेंट दे आर आस्किंग अबाउट सी. गुड. ठीक है. आई इज इक्वल टू 10%, एन इक्वल टू 4 इंस्टॉलमेंट्स. क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? ए इज इक्वल टू सी बाय आई, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. ओके. ठीक है. विल पुट द वैल्यू 461 464,100 C by I is equal to 10%, 1 plus 10% raised to 4 minus 1. So 464,100 into 10%. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 plus 10 upon 100 raised to 4 minus 1. What is 1 plus 10 upon 100? वैल्यू कितना रहता है डेसिमल में? 1.1. 1.1 raised to 4 minus 1. ठीक है. So 0 zeros and 0 zeros are getting cancelled. 46140 C. Okay. 1.4641 minus 1. 4640410 is equal to C into 0.4641. चलो इतना कॉपी करो पहले. ओके. हैव यू कॉपीड दिस? जल्दी कॉपी करो प्लीज. वेट. 10,000 इज रॉन्ग. देखो बराबर से कैलकुलेशन.
1000? क्या रे, 4 साल में 1000 रुपीज जमा करेगा तो एंड में क्या 4,64,100 मिलेगा क्या? थिंक अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट स्टेप. 46410 अपॉन 0.4641. ओके, अभी नीचे का डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट करना है, तो ऊपर कितना जीरोस रहेगा? नीचे का डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट करना है तो ऊपर कितना जीरोस डालो? आई विल पुट 4 zeros, 1 2 3 and 4. ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5 zeros. C is equal to rupees 1 lakh. C is equal to rupees 1 lakh. Okay, have you understood this? अभी फॉर्चुनेटली इधर 4641 और 4641 कैंसिल हो गया, ऐसा हमेशा नहीं होता है. ओके, वो टाइम पे तुम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ये. क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 के बाजू में लिखना सेम एज क्वेश्चन नंबर 7. सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 लिख दो. Let us go to question number 16. Let us go to question number 16. A person sets up a sinking fund in order to have 1 lakh after 10 years. तो ये आदमी को 10 साल के बाद में कितना अमाउंट चाहिए खुद के पास? This person requires what amount after 10 years? 1 lakh. अभी चाहिए कि फ्यूचर में चाहिए? 1000 कैसा? 1 lakh फ्यूचर में चाहिए. So this is the amount which he wants to accumulate in the future. Future value दिए. They have given the future value. Right? Okay. तो सिंकिंग फंड क्या बोलता है कि थोड़ा 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 करके आप इन्वेस्ट करते जाओ. ओके, इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटी, so that at the end of the 10 years you will get 1 lakh. Fine. What amount should be deposited biannually?
in the account that pays him 5% per annum, compounded semi-annually. प्रॉब्लम ईयरली है, हाफ ईयरली है, मंथली है कि क्वार्टरली है? प्रॉब्लम ईयरली है, हाफ ईयरली है, मंथली है कि क्वार्टरली है? बाय एनुअली, इसका मतलब है हाफ ईयरली है। n इज इक्वल टू 10 years। क्या करूं 10 years को? 2 क्या मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाइड बाय 2। 20 इंस्टॉलमेंट्स, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स, 10 साल में कितना होगा? 20 इंस्टॉलमेंट्स। I इज इक्वल टू 5% अपॉन 2.5%। अग्रीड? समझ में आया तुम लोग को ये? ओके, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट? सी, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, मतलब हर एक हाफ ईयर में कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट या सेव करना चाहिए, सो दैट ये सब मिला के एंड में इंटरेस्ट के साथ 1 लाख रुपीज मिलेगा। समझा कि नहीं समझा? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सेम प्रॉब्लम। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब वही है ना कि वी हैव टू टेक द एंटायर कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू हाफ ईयरली, बस वही है। इसके लिए हम लोग ने रेट को डिवाइड बाय 2 किया ना। ओके, a इज इक्वल टू c बाय i, 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1। a इज इक्वल टू 1 लाख, c बाय i कितना है? 2.5%, 1 प्लस 2.5% रेज टू 20 माइनस 1। पहले इतना कॉपी करो। बस कॉपी दिस मच। हैव यू कॉपीड? ओके, so 1 lakh into 2.5% equal to c, 1 plus 2.5 upon 100 raised to n minus 1।
Is it 1.025? 100 plus 2.5, that is 102.5 upon 100. The point will shift from here to here. 1.025. Okay. So 1000 into 25 upon 10. C 1.025 का वैल्यू दिया है उन लोग ने. ओके. 1.025 raised to 20 is 1.675 minus 1. Okay. 2500 C 0.325 बराबर है क्या? 2500 C 0.325. सॉरी मैंने 1 से माइनस किया ये. इट इज 0.675. मैंने 1 से माइनस किया वो गलती से. 1.675 minus 1, that is 0.675. Please copy till here. ये देखो प्रीवियस स्लाइड जिसको देखना था. Okay. So 2500 upon 0.675 is equal to C. So C is equal to 2500 675. ऊपर कितना जीरो पड़ेगा? 3 0. Correct. Okay. Both the values are divided by 25. 25 से डिविजिबल है क्योंकि इधर एंड में 0 0 है और यहाँ पे 75 है. नीचे 27 आएगा. डिवीजन करो चलो. You are supposed to divide it. Don't use a calculator, please. Exam में calculator is not allowed. डेसिमल के बाद में दो वैल्यूज चाहिए. 2 digits after the decimal place. We require the answer. क्योंकि वो पैसे में कन्वर्ट होता है. डिवीजन बराबर से करो. Is it 3703.70?
370, 3.70. ठीक है, तो 2 डिजिट का काफी है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। क्लियर है ये? हाँ, 0.675 करेक्ट। 0.675 को मैंने पॉइंट एलिमिनेट किया, इसका पॉइंट एलिमिनेट किया तो ऊपर 3 जीरोस बढ़ा दिया, और फिर 25 से डिवीजन किया, ऊपर और नीचे 25 से डिवीजन कर दिया। नाउ मार्क मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 का 15th प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टडी। मिसलिनियस का 4th का 15th प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, this is self study. Now you will be able to solve this. Let us go to 24th problem. Miscellaneous का 24th problem. Okay. Initial part of the problem is difficult, आगे जाके simple होगा. Some machinery is expected to cost 25% more over its present cost of 6,96,000 after 20 years. एक पर्टिकुलर मशीन है, उसका अभी का वैल्यू 6,96,000 है. ओके, करंट वैल्यू आफ्टर 25 इयर्स, आफ्टर 25 इयर्स वो मशीन का उतना ही वैल्यू रहने वाला है. नो, so I'll write value of the machine after 20 years is equal to 6,96,000 plus 25% of 6,96,000. मतलब 25% उसका रेट बढ़ गया है. ये समझा सब लोग को ऊपर वाला? हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैलकुलेशन विल डू, डोंट वरी, बट इतना समझा क्या? ओके, सो 6,96,000 1 plus 25%. नहीं नहीं, विथ टाइम पासेस वैल्यू ऑफ द मशीन ड्रॉप्स, वो बराबर है, वो डेप्रिसिएशन है, राइट. लेकिन नया नया मशीन परचेस करने का है, तो नया मशीन का कॉस्ट है. आई शुड राइट वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन, राइट, वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन. जूना बेच के नया लेने के अपने को, तो नया मशीन का प्राइस 20 इयर्स के बाद में कितना रहेगा? 25% ऐड कर दो उसमें. अंडरस्टूड हमें? ओके, सो 6,96,000 25/100 696,000. ओके, 125/100.
रुपीज। यहाँ पे न्यू मशीन लिखो, न्यू मशीन। अगर बिजनेसमैन को जूना बेच के नया मशीन लेना है तो उसका प्राइस तो बढ़ गया रहेगा 20 ईयर्स के बाद में, राइट? तो वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन आफ्टर 20 ईयर्स, इज इट 8,70,000? बोलो। Okay, so after 20 years, if this person is going to buy a machine, अगर ये बिजनेसमैन मशीन बाय करने गया, जूना उसको फेंक देने का, बेच देने का, और नया मशीन को परचेज करने का, तो उसका उसके पास कितना पैसा रेडी रहना चाहिए आफ्टर आफ्टर 20 ईयर्स? 8,70,000। ओके, सो वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन आफ्टर 20 ईयर्स इज 8,70,000। तो उसके पास 20 ईयर्स के बाद में इतना पैसा जमा रहना चाहिए, राइट? बट देन आफ्टर 20 ईयर्स वो ओल्ड मशीन को, जो उसके पास एग्जिस्टिंग मशीन है, उसको तो स्क्रैप में डालेगा, बराबर है? द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल रियलाइज 1,50,000। समझा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ सी, I'll explain one more scenario. मेरे पास एक मोबाइल फोन है, हाँ? आई एम गोइंग टू अ शॉप, शॉपकीपर को बोलता हूँ मैं, मुझे ये मोबाइल फोन अभी यूज करने को बंद करने का है, शो मी अ न्यू मोबाइल फोन। तो शॉपकीपर ने मेरे को नया मोबाइल फोन दिखाया और वो मेरे को बोल रहा है इसका प्राइस है 20,000। ओके, मैं शॉपकीपर को बोलता हूँ ये मेरा जूना मोबाइल फोन है, इसको आप स्क्रैप में डाल दो, इसका कितना आएगा? शॉपकीपर बोलते हैं अगर आप मुझे ओल्ड मोबाइल फोन मुझे रिटर्न कर रहे हो तो उसका 5,000 रुपीज में आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो ओवरऑल, शॉपकीपर को मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा जूना रिटर्न करके नया लेने के लिए? 15,000 देना पड़ेगा, राइट? ऐसा किया है तुम लोग ने कभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉप में? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट इज गेटिंग अप्लाइड ओवर हियर, सेम कॉन्सेप्ट, exchange offer, correct? Same concept is getting applied over here. So after 20 years, the businessman has to accumulate some value. So what is the accumulated value? जूना देके नया लेने का, नए वाले का कॉस्ट है 8,70,000, जूने वाले का कॉस्ट उसको स्क्रैप में डालने का, तो उसका स्क्रैप का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? 1,50,000। अंडरस्टूड? अरे बोलो, ये समझा कि नहीं? बहुत ही क्रूशल है। ओके, सो दिस इज रुपीज 7,20,000। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? ये पूरा सिनेरियो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज रिप्लाई। 6,96,000 का ओल्ड मशीन नहीं है, वो जो मशीन यूज कर रहा है अभी, वो उसने 6,96,000 में परचेज किया था। 20 ईयर्स के बाद में ही इज गोइंग टू परचेज अ न्यू मशीन। तो न्यू मशीन का जो प्राइस 20 ईयर्स के बाद में होने वाला है, विल इट बी 6,96,000? नो, उसमें 25% का एडिशन होने वाला है। तो हम लोग ने 20 ईयर्स के बाद में जो करंट मशीन वो यूज कर रहा है उसका वैल्यू निकाला, 8,70,000। अग्रीड?
अग्रीड, ओके। लेकिन जो करंट मशीन यूज कर रहा है, करंट मशीन यूज कर रहा है, वो 20 ईयर्स के बाद में जूना बनेगा, 20 ईयर्स के बाद में वो ओल्ड बन जाएगा। एम आई करेक्ट? तो 20 ईयर्स के बाद में जो करंट मशीन अगर ओल्ड बन रहा है तो ओल्ड मशीन को स्क्रैप में डालना पड़ेगा। बराबर है। हेलो, प्लीज रिप्लाई। सो ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स जो करंट मशीन वो यूज कर रहा है उसको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, राइट? तो स्क्रैप कितना अपने को पैसा देगा? 1,50,000 रिटर्न करेगा। और वो टाइम पे मुझे नया मशीन जो लेने का है उसका वैल्यू कितना रहेगा? 8,70,000। तो ये तो अपने पॉकेट से जाएगा, लेकिन ये अपने पॉकेट में आएगा ना स्क्रैप का वैल्यू। ठीक है। तो ओवरऑल कितना रुपीस का प्रोविजन कर लेना चाहिए उसको? 7,20,000। हाँ, तो 6,96,000 वाला और 1,50,000 वाला जो स्क्रैप का वैल्यू है वो सेम मशीन है। ठीक है, ओके। तो देखो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है, तो कौन सा कैटेगरी का प्रॉब्लम है ये? एन्युटी इमीडिएट। ओके। सो व्हाट अमाउंट शुड बी सेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इसका मतलब क्या है? एंड ऑफ एवरी ईयर का मतलब क्या है? एन्युटी इमीडिएट। लेकिन अमाउंट टू बी सेट असाइड का मतलब क्या है? सी। दे आर आस्किंग सी, राइट? तो 7,27,000, 7,20,000 क्या हो गया? ए हो गया, कैपिटल ए। अब ये प्रॉब्लम हाफ ईयरली क्वार्टरली का नहीं है, सिंपल प्लेन प्रॉब्लम है। ओके। ए इज इक्वल टू ई बाय आई, 1 + i⁻n−1। ठीक है। 7,20,000 ई बाय आई इज इक्वल टू 5%, 1 + 5% रेज टू 20 - 1। Calculations are clear in front of you. ओके।
ठीक है, सो दिस इज 36,000 1.655 C. So C is equal to 36,000 1.655. ऊपर 3 जीरो और ऐड करो 1655. ओके, ये 5 से रिड्यूस करके सॉल्व करो. चलो, पहले 5 से रिड्यूस करो इसको. 2.655 माइनस 1 कितना होता है? 1.655, राइट ना? 2.655 लो. टेक 2.655. ओके, टेक 2.655. ओके, ये 5 से रिड्यूस करो पहले. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे. कैलसी से मत सॉल्व करो, पहले 5 से रिड्यूस करो. 5 7 द 35. 2 अपॉन अपॉन कितना? 331. अभी डिवाइड करो. डिवाइड करके आंसर लिखो बराबर से. आई एम शोइंग द स्लाइड्स. जिसने कॉपी नहीं किया देख लो बराबर से. अदर्स प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू. 21752 पॉइंट समथिंग है. मैनी स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग विद दैट. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट देन आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स. सो इट इज 21752 पॉइंट. ऐसा कुछ तो आ रहा है. फर्स्ट स्लाइड हो गया तो बोल देना. 21778 रॉन्ग है. 21752 पॉइंट. पॉइंट कितना तो है. सेकेंड स्लाइड.
थर्ड स्लाइड एंड फोर्थ स्लाइड. ठीक है. So that's it. We'll wind up our class over here, and we'll continue with this chapter in the next class. Okay. 2.655 ले लो. I told you ना. Just take 2.655. ये चैप्टर का पढ़ाई चालू कर दो. टेस्ट मे बी अगले 10 दिन में रहेगा इसका. आफ्टर अ वीक आई विल कंडक्ट द टेस्ट ऑन दिस चैप्टर. अरे यार, प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेल्फ स्टडी आपने नोट डाउन नहीं किया था क्या? कर लेना चाहिए था ना. 14, 15, 17, 22, 23. 14, 15, 17, 22, 23. Yes. Okay. ठीक है. Thank you. I'll see you in the next class.